Dear students, today we are going to start exercise 5.1, that is depends upon continuity of a particular function. Before going to start this exercise, we discuss about the previous definition. We discussed two previous definition of continuity. First one is limit x tends to a f of x equals to f of a. A function is continuous at x equals to a if limit x tends to a f of x equals to f of a. Second one is left hand limit equals to right hand limit equals to f of a, then that function is continuous at x equals to a. So we focus on these two definitions. We have to apply these two definitions in the given question. Clear? So now first question will be, prove that the function fx equals to 5x minus 3 is continuous at x equals to 0, at x equals to minus 3 and at x equals to 5. As I previous told you that 5x minus 3 is what? 5x minus 3 is a polynomial function, or as we know that polynomial function are continuous. So this function is continuous. हम डायरेक्टली राइट कर सकते हैं. यदि हम इसको प्रूव करना चाहें तो कोई भी एक रियल वैल्यू लेते हैं. लेट ए बी एनी रियल वैल्यू. लेट ए बी, यहाँ पे ए की जरूरत है नहीं क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर फंक्शन दे रखे हैं एट एक्स इक्वल्स टू 0. यहाँ पे कोई भी रियल वैल्यू लेने की जरूरत है नहीं. यहाँ पे सिर्फ इन 3 पॉइंट पे हमें चेक करना है. यदि कोई पर्टिकुलर पॉइंट हमें गिवन है तो उन्हीं पॉइंट पे चेक करना है, अदरवाइज हमें सभी रियल नंबर के बारे में डिस्कशन करनी है. ठीक है, तो एट एक्स इक्वल्स टू 0, एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो पहले क्या फाइंड करना है? एफ ऑफ 0. एफ ऑफ 0 फाइंड करेंगे. तो एफ ऑफ 0 मीन्स 5 into 0 minus 3, तो रिजल्ट विल बी minus 3. क्लियर? सेकेंड वन इज लिमिट x tends to 0 f of x, that implies limit x tends to 0 f of x is what? 5x minus 3. So we put 5 into 0 minus 3. So means limit x tends to 0 f of x equals to f of 0. So this is, it is continuous, या fx is continuous at x equals to 0. क्लियर? मीन्स इस टाइप का डायरेक्टली कोई भी सेपरेशन नहीं है, कोई भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, तो हम डायरेक्टली क्या यूज करेंगे? फर्स्ट डेफिनेशन यूज करेंगे. ठीक है. सिमिलरली इफ यू फाइंड एट x इक्वल्स टू minus 3, तो f of minus 3 is 5 into minus 3 minus 3. So minus 15 minus 3 result will be 18. Clear? Now limit x tends to minus 3 f of x. F of x is 5x minus 3. यहाँ पे यदि x इक्वल्स टू माइनस 3 पुट करते हैं तो 5 minus 3 which is also minus 18. This is minus 18. Clear? तो means limit x tends to minus 3 f of x equals to f of minus 3. तो fx is continuous at x equals to minus 3. Clear? Similarly, we can prove that for x equals to 5. So at x equals to 5. So at x equals to 5 means f of 5. We replace x by 5.
5 minus 3. So 25 minus 3 result will be 22. Now we find limit. Limit x tends to 5 f of x. That implies f of x is what? Limit x tends to 5 into x minus 3. Clear? If you put 5 into 5 minus 3, that is 22. So limit x tends to 5 f of x equals to f of 5. So it is continuous at x equals to 5. तो लाइक दिस वे हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट गिवन है तो उस पॉइंट पे हम उसको प्रूव कर देंगे। यदि पॉइंट नहीं गिवन है तो हम कोई भी एक रियल नंबर कंसिडर करके सभी रियल नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि उस रियल नंबर में वो क्वेश्चन प्रूव कंटिन्यूस है या नहीं है। तो सिमिलरली वी कैन डू क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं। Now we discuss question number 3. In question number 3, examine the following function for continuity. So you try yourself A and B. A and B part are simple. We discuss C and D. In the C question, fx equals to x square minus 25 upon x plus 5. X is not equal to minus 5. Means except x equals to minus 5, we discuss the continuity of this function. So we consider let a be any real number such that a is not equal to minus 5. a कोई भी रियल नंबर है जो a नॉट इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, तो हम क्या फाइंड करें? सबसे पहले फाइंड करें f ऑफ a। f ऑफ a इज a स्क्वायर माइनस 25 अपॉन a प्लस 5। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a माइनस b इंटू a प्लस b डिवाइडेड बाई a प्लस 5। तो रिजल्ट विल बी a माइनस 5। क्लियर? नाउ वी फाइंड लिमिट x टेंड्स टू a f of x। दैट इम्प्लाइज लिमिट x टेंड्स टू a x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5। तो लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस 5 इंटू x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। तो वी कैंसिल x प्लस 5 बाई x प्लस 5। इफ विल पुट द लिमिट देन दिस रिजल्ट विल बी a माइनस 5। तो वी कैन से दैट लिमिट x टेंड्स टू a f of x equals to f of a। तो at last we write fx is continuous for all values of a is not equal to minus 5। ए भी एनी रियल नंबर, तो कोई भी रियल नंबर हम पुट करते हैं तो ये फंक्शन क्या हो गया हमारे पास है, कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि दिस इज ए रेशनल पॉलिनोमियल और रेशनल पॉलिनोमियल इज ऑलवेज ए कंटिन्यूस प्रोवाइडेड दैट रियल फंक्शन होना चाहिए, वो फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। यदि x इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू माइनस 5 नहीं होता यहाँ पे तो ये फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता, और ये फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम क्या कर सकते हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कंटिन्यूटी हम चेक नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट वन डी एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स माइनस 5। जैसा कि पहले मैंने बताया था मोडलेस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, तो दिस इज ए मोडलेस फंक्शन, तो दिस इज कंटिन्यूस। तो एज वी नो दैट मोड ऑफ एक्स इज माइनस एक्स वन एक्स लेस देन 0 प्लस एक्स वन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मीन्स ये 0 कहाँ से आए, मोड के अंदर की क्वांटिटी को हमने क्या किया है, 0 के साथ इक्वेट किया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मोड की क्वांटिटी को 0 के साथ इक्वेट करेंगे। यदि इसको 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 मीन्स
इज x इक्वल्स टू 5। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मोड ऑफ x माइनस 5। ये कंप्लीट नेगेटिव होगा, कब होगा, जब x लेस देन 5। ये कंप्लीट पॉजिटिव होगा, कब होगा, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब देखिए इसकी कंटिन्यूटी। देखिए फर्स्ट केस, व्हेन x लेस देन 5, x लेस देन 5 है तो fx क्या रहेगा हमारे पास, 5 माइनस x। 5 minus x is what? A polynomial. Or as we know that polynomial function is continuous. So this is polynomial. So this function is continuous for all values of x less than 5. Second, x greater than 5, for x greater than 5 fx equals to क्या हमारे पास, x माइनस 5 विच इज आल्सो पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है। और एज वी नो दैट पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो इट इज आल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ग्रेटर देन 5। अब एट x इक्वल्स टू 5 पे चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि x पे लेफ्ट हैंड लिमिट में तो अलग फंक्शन है, राइट हैंड लिमिट में हमारे पास अलग फंक्शन है। तो हम एट x इक्वल्स टू 5 पे इसकी वैल्यू चेक करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। एट x इक्वल्स टू 5, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 5 माइनस का मीनिंग क्या हुआ, स्लाइटली लेस देन 5। स्लाइटली लेस देन 5, तो वी टेक दिस फंक्शन, और दिस फंक्शन इज 5 माइनस x। इफ वी पुट x इक्वल्स टू 5, अब x 5 माइनस h पुट करने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x इक्वल्स टू 5 पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होगा, 5 माइनस 5 रिजल्ट विल बी 0। क्लियर। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 5 प्लस के लिए ग्रेटर देन 5 के लिए क्या हमारे पास x माइनस 5 है, x माइनस 5। इफ वी पुट x इक्वल्स टू 5 देन रिजल्ट विल बी 0। और f ऑफ 5 भी क्या होगा, इक्वल टू 5 के लिए फंक्शन क्या है, x माइनस 5 है, तो f ऑफ 5 भी क्या होगा, 5 माइनस 5 रिजल्ट विल बी 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit is equal to half of 5. So this function is continuous at x equals to 5. x less than 5 के लिए भी continuous है, x greater than 5 के लिए भी continuous है, at x equals to 5 के लिए भी continuous है। तो fx is continuous for all real values of x। तो ये fx क्या सभी real values of x के लिए क्या है, continuous है। ठीक है, और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो ये ऑब्वियसली कंटिन्यूअस होना भी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शन f(x) x लेस देन 1, 5x ग्रेटर देन 1, कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 1, एट x इक्वल्स टू 2। तो फॉर एट x यहाँ पे देखो पर्टिकुलर पॉइंट दे रखे हैं, तो हम सिर्फ इन पॉइंट पे चेक करेंगे, बाकी रियल नंबर के बारे में डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए एट x इक्वल्स टू 0, सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन हम अप्लाई करते हैं, क्या निकालेंगे, f ऑफ 0 फाइंड करेंगे। तो f ऑफ 0 क्या है, x लेस देन 1 है, तो f ऑफ 0 के लिए क्या होगा, 0 जाएगा, क्योंकि लेस देन 1 के लिए फंक्शन क्या है, x की जगह 0 पुट करें। लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, दैट इंप्लाइज लिमिट x टेंस टू 0 के लिए फंक्शन क्या आएगा, लेस देन 1 x ही आएगा, x, और लिमिट पुट करते हैं तो क्या होगा हमारे पास 0 हो गया। ठीक है, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 0, तो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। यदि वैसे देखें हम कॉमन सेंस में, तो x इक्वल्स टू 0 क्या, लेस देन 1, और लेस देन 1 है तो fx क्या होगा हमारे पास, x, विच इज आइडेंटिटी फंक्शन। ये एक आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, और आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो ये कंटिन्यूअस भी है, वैसे भी हमारे पास
ठीक है। सेकंड एट x इक्वल्स टू 1 पे चेक करें, एट x इक्वल्स टू 1। अब 1 पे देखिए, लेस देन 1 के लिए डिफरेंट है, ग्रेटर देन 1 के लिए डिफरेंट है। तो इस तरह से डिफरेंट वैल्यू आती है तो हम सेकंड डेफिनेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो सेकंड डेफिनेशन यूज करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 माइनस मीन्स लेस देन 1। लेस देन 1 के लिए fx क्या रहेगा, x रहेगा। यदि 1 पुट करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा हमारे पास है 1। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस। अब 1 प्लस है तो प्लस मीन्स ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 के लिए क्या आ रहा है हमारे पास, डायरेक्टली 5 आ रहा है, तो दिस इज 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit. तो this is discontinuous at x equals to 1. तो fx is discontinuous at x equals to 1. तो x equals to 1 के लिए ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। अब at x equals to 2 पे चेक करें, at x equals to 2 पे चेक करते हैं तो fx क्या होगा हमारे पास, fx इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 मीन्स 5। और क्या है कांस्टेंट फंक्शन, एंड कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2, बट इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। नाउ find all the point of discontinuity of f where f is defined by। तो फर्दर जो क्वेश्चन है हम ओड क्वेश्चन ट्राई डिस्कस करेंगे। यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ बाई इवन नंबर ऑफ ए क्वेश्चन। तो 6 ट्राई योर सेल्फ, क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ x प्लस 3 x लेस देन इक्वल टू -3 माइनस 2x माइनस 3 लेस देन x लेस देन 3 एंड 6x प्लस 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मीन्स हम डिस्कस करेंगे सभी रियल नंबर के बारे में, ठीक है। और स्पेशली डिस्कस किस पे करेंगे, जहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट है। यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट 2 है, x इक्वल्स टू -3 पे और x इक्वल्स टू 3 पे। तो x इक्वल्स टू -3 और 3 पे हम स्पेशली चेक करेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं डिसकंटिन्यूअस होने के। बाकी तो इतने चांसेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं डिसकंटिन्यूअस होने के। तो इसके लिए फर्स्ट केस x लेस देन -3 से कम, तो फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ x प्लस 3। अब x लेस देन -3 है, -3 है तो मॉडुलस फंक्शन क्या रहेगा हमारे पास, नेगेटिव रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा, और पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो इसमें डायरेक्टली लिख देंगे x लेस देन -3, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्लियर। सेकंड -3 लेस देन x लेस देन 3। -3 और 3 के बीच में क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू -2x। अब -2x इज आल्सो ए पॉलिनोमियल फंक्शन, तो दिस इज आल्सो कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस होगा। बस एज आपने इतना ही राइट करना है, एज वी नो दैट पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो इट इज कंटिन्यूअस। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। थर्ड, x ग्रेटर देन 3 से ग्रेटर, तो एफ एक्स क्या रहेगा हमारे पास, 6x प्लस 2। 6x प्लस 2 रहेगा। ये भी क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये तो हो गया हमारे पास डायरेक्टली रिटर्न फॉर्म, मीन्स हमने यहाँ पे सिर्फ राइट करना है। अब उसके बाद जो मेन पॉइंट क्या है, देखो -3 और 3 इंक्लूड नहीं हुए, तो -3 और 3 पे हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली चेक करेंगे। तो फोर्थ एट x इक्वल्स टू -3 पे देखो ऐसे ब्रेकिंग पॉइंट है, तो हम क्या यूज करेंगे, सेकंड डेफिनेशन। अब सेकंड डेफिनेशन में हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू -3 माइनस। अब -3 से लेस है तो क्या होगा, मोड ऑफ x प्लस 3। अब डेफिनेशन, मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन आपको बताई गई है, लेकिन जरूरी नहीं है इसके अंदर वो हम डेफिनेशन यूज ही करें, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। यहाँ पे यदि डायरेक्टली हम -3 पुट करेंगे तो -3 प्लस 3, तो रिजल्ट विल बी
6. Mode of minus 3 is plus 3. Right hand limit x tends to minus 3 plus. Minus 3 plus means minus 3 से greater. Minus 3 से greater क्या हमारे पास minus 2x. और the limit put करते हैं तो minus 2 minus 3 result will be 6. Right hand limit is also 6. Next one is x equals to minus 3. तो half of minus 3 क्या होगा? half of minus 3 is, देखो इक्वल टू साइन यहाँ पे है तो माइनस 3 हम यहाँ पे पुट करेंगे. माइनस 3 यहाँ पे पुट करते हैं तो मोड ऑफ माइनस 3 प्लस 3 6. तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू माइनस 3. तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू माइनस 3. एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू माइनस 3. क्लियर? नेक्स्ट किस पे चेक करें हम? एट एक्स इक्वल्स टू 3 पे चेक करें. एट एक्स इक्वल्स टू 3. सिमिलर प्रोसेस, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस. 3 माइनस मीन स्लाइटली लेस देन 3. और स्लाइटली लेस देन 3 के लिए फंक्शन क्या है? माइनस 2x. तो हम पुट करें माइनस 2x. यदि लिमिट पुट करते हैं तो माइनस 2 इंटू 3 रिजल्ट विल बी माइनस 6. यहाँ पे h वगैरह मैंने पहले बताया है, इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं, हम इसको डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं. ठीक है? राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 प्लस. और 3 प्लस के लिए फंक्शन क्या रहेगा हमारे पास? ग्रेटर देन 3. ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन है 6x प्लस 2. यदि पुट करते हैं तो 6 इंटू 3 प्लस 2. तो दिस इज 20. दी 20 आ गया तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है. तो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 3. एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस. एट एक्स इक्वल्स टू 3. तो क्या फाइंड करना था हमने? फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. तो डिसकंटिन्यूटी क्या है? ओनली एट x इक्वल्स टू 3 पे दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. बाकी सभी वैल्यूज में ये फंक्शन क्या रहेगा? कंटिन्यूअस रहेगा. तो लाइक दिस वे वी कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चंस. नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9. तो लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी, x less than 0. The function is when x less than 0. So f of x is x upon mod x. If x less than 0, then value of mod x is minus x. So x upon minus x. The value is minus 1. So fx equals to minus 1. Fx equals to minus 1 is the constant function. So it is continuous for less than 0. Second, x greater than 0, fx equals to minus 1. So it is also constant function. Constant function is a continuous function. Third one is x equals to 0. X equals to 0, left hand limit is limit x tends to 0 minus. x tends to 0 minus के लिए क्या होगा हमारे पास? x upon mod x. If x less than 0, then modulus function is negative. तो x upon minus x result is minus 1. Right hand limit is limit x tends to 0 plus means slightly greater than 0. अब slightly greater than 0 के लिए क्या होगा? minus 1. तो minus 1. This is minus 1. And f of 0 means at x equals to 0. Exactly at x equals to 0. तो जहाँ पे इक्वल टू का साइन है वहाँ पे हम वो वाला फंक्शन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस 1. तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस 1, सॉरी एफ ऑफ 0. तो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स. ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा सभी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा. क्लियर? नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 11. fx equals to x cube minus 3
if x less than equal to 2 and x square plus 1 if x greater than 2. We discuss about all real values. So first, when x less than 2 then fx is x cube minus 3. So which is polynomial function, and polynomial function is a continuous. So it is continuous for all values x less than 2. Second one is x greater than 2 fx equals to greater than 2 के लिए क्या होगा हमारे पास x square plus 1 which is polynomial, and we know that polynomial function is continuous, so it is continuous for all values of greater than 2. Now we check at x equals to 2. तो left hand limit x tends to 2 minus means slightly less than 2. Slightly less than 2 function is x cube minus 3. If we put x equals to 2, so 2 cube minus 3 means 8 minus 3, result is 5. Right hand limit, in right hand limit x tends to 2 plus. For 2 plus means greater than 2 function is x square plus 1. If we put x equals to 2, then 2 square plus 1 which is also 5. Now according to second definition we have to find f of 2. f of 2 कहाँ पे पुट करेंगे, जहाँ पे इक्वल टू का साइन है. इक्वल टू का साइन कहाँ पे है, यहाँ पे. तो यहाँ पे हम f of 2 पुट करेंगे मीन्स 2 क्यूब माइनस 3 रिजल्ट इज 5. तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f of 2 मीन्स लेस देन 2 के लिए कंटिन्यूस है, ग्रेटर देन 2 के लिए कंटिन्यूस है, एट x इक्वल्स टू 2 के लिए कंटिन्यूस है. तो इट इज कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x. Question number 13, 12, try yourself. In question number 13, is the function defined by fx equals to x plus 5, x less than equal to 1, x minus 5, x greater than 1 a continuous function. हमें चेक करना है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं. तो सिमिलर प्रोसेस, सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड लिमिट वी हैव टू चेक इज द फंक्शन इज कंटिन्यूस. यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट गिवन नहीं है, पर्टिकुलर पॉइंट गिवन नहीं है तो हम सभी वैल्यू के लिए हम चेक करेंगे. फर्स्ट व्हेन x लेस देन 1 f of x इक्वल्स टू x plus 5 is polynomial and we know that polynomial function is continuous function. This is linear polynomial. Second, x greater than 1 fx is x minus 5 which is also polynomial, and we know that polynomial function is continuous, so it is continuous for all values of a greater than 1. Third one is at x equals to 1. For at x equals to 1, left hand limit x tends to 1 minus means slightly less than 1. Slightly less than 1 function is x plus 5. If we put x equals to 1, so 1 plus 5 equals to 6, which is 6. Right hand limit x tends to 1 plus. 1 plus means greater than 1. Greater than 1 is x minus 5. If we put 1 minus 5, result is minus 4. So left hand limit is not equal to right hand limit. So it is fx is discontinuous at x equals to 1. जो fx है वो at x equals to 1 पे क्या है, डिसकंटिन्यूस है. क्लियर. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 15. इन क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx. fx फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है. वी हैव गिवन दैट fx इक्वल्स टू 2x x less than 0, 0 less than equal to x less than equal to 1, 4x x greater than 1. डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. इस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है. तो कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए वही सेम प्रोसीजर. x लेस देन 0 फंक्शन फर्स्ट
x less than 0, fx equals to 2x, which is polynomial function, and polynomial function is continuous. Second, 0 less than x less than 1, fx equals to 0. This is 0 polynomial. 0 polynomial is also continuous. Third one, x greater than 1, fx equals to 4x, which is polynomial. Polynomial function is a continuous function. Now we check at point 2 where there is 2 breaking points. So we separately check these 2 points. At x equals to 0. At x equals to 0, left hand limit. Limit x tends to 0 minus. अब 0 माइनस के लिए क्या होगा 2x, तो 2x, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो रिजल्ट विल बी 0. राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस. अब 0 प्लस मीन्स ग्रेटर देन, स्लाइटली ग्रेटर देन 0. इतना ग्रेटर नहीं है कि यहाँ पे 1 से ग्रेटर हो जाए, स्लाइटली ग्रेटर देन 0. तो रिजल्ट क्या आएगा 0. दिस इज 0 एंड f ऑफ 0 विल बी इक्वल टू का साइन कहाँ है यहाँ पे, तो f ऑफ 0 भी क्या हो गया 0 हो गया. मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ 0. तो इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0. नाउ वी चेक एट x इक्वल्स टू 1. इफ वी चेक एट x इक्वल्स टू 1, देन लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस. अब 1 माइनस 1 से कम के लिए फंक्शन क्या है 0 है, 0 तो इक्वल्स टू 0. राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या है 4x. इफ यू पुट x इक्वल्स टू 1, देन रिजल्ट विल बी 4. तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. If left hand limit is not equal to right hand limit, so it is discontinuous at x equals to 1. So this function is continuous at x equals to 0 and discontinuous at x equals to 1. Question number 17. Find the relationship between a and b so that the function f defined by fx equals to ax plus 1 when x less than equal to 3. bx plus 3 when x greater than 3 is continuous at x equals to 3. तो इज कंटिन्यूअस, जहाँ पे भी इज कंटिन्यूअस की बात आती है आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ a. f ऑफ a, वैल्यू ऑफ a इज here 3, वैल्यू ऑफ a इज 3. तो नाउ फाइंड f ऑफ 3. अब f ऑफ 3 कहाँ फाइंड करेंगे, जहाँ पे क्या है इक्वल टू का साइन है. तो इक्वल टू का साइन कहाँ पे है, यहाँ पे है. तो 3 इज 3a प्लस 1. क्लियर. नाउ वी फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस. 3 माइनस मीन्स लेस देन 3. लेस देन 3 इज ax प्लस 1. इफ वी पुट x इक्वल्स टू 3, then result will be 3a plus 1. Right hand limit, limit x tends to 3 plus. For 3 plus, result will be bx plus 3. If we put x equals to 3, then result will be 3b plus 3. So this is continuous function. Continuous function means it satisfies this equation. If we put the value of this, then result will be 3a plus 1 equals to 3b plus 3 equals to 3a plus 1. तो ये तो सेम है, तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं. तो 3a equals to 3a plus 1 equals to 3b plus 3 means 3a equals to 3b plus 2. तो a equals to b plus 2 by 3 if we divide by 3. तो a equals to b plus 2 by 3 is the relation, because we have to find only the relations. Clear? Now question number 18. Similarly, for what value of lambda? For what value of lambda? fx equals to lambda into x square minus 2x, x less than equal to 0, 4x plus 1,
x greater than 0 is continuous at x equals to 0. What about continuity? What about continuity of at x equals to 1? x equals to 1 के लिए इसकी कंटिन्यूटी का क्या मैटर है? तो x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूस है, मीन्स वही प्रोसेस सेम, भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू अप हो गई, ये डेफिनेशन इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए वही प्रोसीजर, अप ऑफ 0 मीन्स x की वैल्यू 0 पुट करें तो रिजल्ट विल बी 0। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस के लिए फंक्शन क्या आएगा? लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इफ वी पुट x इक्वल्स टू 0 देन रिजल्ट विल बी 0। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस के लिए क्या आएगा हमारे पास? 4x प्लस 1। इफ वी पुट x इक्वल्स टू 0 देन रिजल्ट विल बी 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में लैम्डा हमारे पास कहीं पे नहीं आया, राइट हैंड लिमिट में 1 है, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी होती रहे, लैम्डा की किसी भी वैल्यू को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। मीन्स लैम्डा की कोई भी वैल्यू इसको 1 नहीं बढ़ा सकती लेफ्ट हैंड लिमिट को, ठीक है। और एफ ऑफ 0 भी क्या हमारे पास 0 है, मीन्स लैम्डा की कोई भी वैल्यू 0 को 1 तो नहीं बढ़ा सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। किसी भी लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, मींस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। वाई? क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट में लैम्डा इंटू 0 आ गया, मीन्स लैम्डा की कोई भी वैल्यू ले हम इस लेफ्ट हैंड लिमिट को ये 1 नहीं बना सकता, मीन्स लैम्डा इसमें इंक्लूड ही नहीं हुआ, लैम्डा इसमें इंक्लूड ही नहीं हुआ, पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, तो लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो इसको 1 नहीं बना सकती। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑलवेज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लैम्डा की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल तो नहीं हो सकती। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं हो सकती तो ये फंक्शन क्या होगा? हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा। अभी कहता है व्हाट अबाउट एट x इक्वल्स टू 1। अब एट x इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो fx क्या होगा? एट x इक्वल्स टू 1 मीन्स x greater than 0. If x is greater than 0 then function is 4x plus 1। तब फंक्शन क्या होगा हमारे पास? 4x plus 1 होगा, मीन्स 4x plus 1। यहाँ पे देखिए कहीं पे लैम्डा आया नहीं हमारे पास, मीन्स लैम्डा की वैल्यू कुछ आती रही, यहाँ पे ये इसको तो इफेक्ट नहीं डाल रहा है। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1। यहाँ पे क्या होगा? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा इट इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल्स टू 1 पे ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा? कंटिन्यूअस रहेगा। और एट x इक्वल्स टू 0 पे लैम्डा की सभी वैल्यू पे ये फंक्शन क्या रहेगा? डिसकंटिन्यूअस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19। In question number 19, show that the function defined by gx equals to x minus greatest integer of x is discontinuous at all integral points। सभी इंटीग्रल पॉइंट्स पे ये फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूट है, ये हमें शो करना है। मीन्स इसमें डायरेक्टली दे रखा है लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और नॉट इक्वल टू ऑफ ए बी एनी इंटीजर। तो इसके लिए हम कंसिडर करें लेट ए बी एनी इंटीजर, ए कोई भी इंटीजर है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ ए। तो ए माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए, कोई भी इंटीजर है, मान लीजिए 1 है, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा? 1। 2 है, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा? 2। -1 है, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा? -1, ठीक है। तो दिस वैल्यू इज a माइनस ए इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो इसके लिए थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए क्या पुट कर दें हम? पुट x इक्वल्स टू a माइनस h। इफ x टेंड्स टू a then h टेंड्स टू 0।
यदि x a को टेंड करता है तो h 0 को टेंड करेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h माइनस a माइनस h। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h। अब a माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a माइनस h। मान लीजिए हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस h करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। इट गिव्स लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? इट गिव्स लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू। ये लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू देता है। तो एक से ये एक इंटीजर है तो इससे लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी? a माइनस 1 रहेगी। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करें तो a माइनस a प्लस 1 तो रिजल्ट विल बी 1। यहाँ से देखो अब a लेफ्ट हैंड लिमिट के नॉट इक्वल है तो यही पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत भी नहीं है। और यदि निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो आप राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। पुट x इक्वल्स टू a प्लस h। If x tends to a then h tends to 0। x a को टेंड करता है तो h 0 को टेंड करेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a प्लस h। फिर पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सोल्व करेंगे। यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम सोल्व करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h माइनस यहाँ पे रिजल्ट क्या जाएगा a, क्योंकि a में कुछ ऐड कर रहे हैं तो इससे लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी? a रहेगी। अब h की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो a माइनस a 0 मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल तो आ गई यहाँ पे। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू हाफ ऑफ a, तो इट इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो वी कैन से दैट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू। क्लियर? तो सिमिलरली यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 20। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 20। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस रिमेनिंग क्वेश्चन। थैंक यू।